Hello and welcome to this webinar on cleanliness. Today, on the occasion of Clean India Drive, to talk about importance of cleanliness in our life, we have with us Sri Deepak Parvatiyar, Chief Patron and Advisor of ICV and Honorable Media Advisor. I heartily welcome you, sir. We also have Communication and Documentation Officer of Morarji Desai National Institute of Yoga, Muhammad Tayyab Alam, with us. We welcome you, sir. Now, without any further delay, let us start the program with prayer. Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Seh Viryam Karvavai Tejasvinamalitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Now I would like to request Muhammad Tayyab Alam sir, CNDO and DNFI to proceed further. Thank you, Dr. Khushbu Jain. Before coming to the topic, I would like to say something about the activities and programs that is being organized by the Institute under the able guidance and dynamic leadership of Dr. Iswar V. Vasavareddy, Director, Morarji Desai Institute of Yoga. Deepak sir, the Institute organized so many webinars, so many programs, seminars, conferences, and this webinar is the part of course, Swachh Bharat Abhiyan. Sir, in the Swachh Bharat Abhiyan, we are conducting so many activities besides cleanliness. We have organized lectures, we have organized talks, we have organized quiz. We have also live videos on COVID-19 as part of Swachh Bharat Abhiyan, sir. And welcome you, sir, and giving your valuable time and sparing your valuable time. And in a very short notice, sir, you have accepted our invitation. Now for Deepak, sir, Deepak Parvatiyar is the Chief Media Advisor of ICV and the Honorable Media Advisor, the Indian Federation of United Nations Association and a We Care Film Festival on Disability Issues. He is also a member of World Water Council. He has hand-on experience of content management across mediums, print, television, news portals. His film, I Am a Special, My World is Different, won the first prize at the rate of first edition of Autis Movie Festival International in Italy in 2013. It was screened at the rate of Real Abilities, Athena, and the Familius Film Fest in USA, and embedded in many websites across the globe. His documentary, The Wizard of Needles, won the Jury Special Mention Award at the rate of We Care Film Fest, co-organized by UNESCO, UNIC, and National Trust Government of India in 2011. Sir has received appreciation letter from BBC production team for contributing as a consultant to their global documentary on asbestosis in 2001. Deepak sir has an independent jury member for Indian News Television Awards 2014. Sir has also guest faculty in many media schools across India and the world. With these few words, I would like to invite
Deepak sir for today's lecture on cleanness. Sir. Welcome you, sir. And Deepak sir, I request you, sir, for the lecture. Thank you, Dr. Tayyab, for such a kind introduction. And I thank Dr. Basavaradi, Dr. Khushbu Jain, and the Morarji Desai National Institute of Yoga for inviting me. And I was told that I will have to speak on the importance of cleanliness in our life. And I was just wondering, it is coming from a school of yoga. Cleanliness and yoga are almost synonymous. So what will I speak? What should I speak about cleanliness? What should I educate you about cleanliness? Because you are the people who will educate us about cleanliness. Yoga has such a, so far as my understanding is there, at least there are 5 niyamas in yoga which are directly linked with cleanliness. मैं एक चीज और बोलूंगा, जब मेरी कल बात हो रही थी तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर खुशबू जैन ने बताया कि ये जो वेबिनार है ये इसमें बच्चे भी जुड़ेंगे, 15 साल से 60 साल तक के हैं, और आप मिक्स्ड भाषा में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश हिंदी मिला करके बोलें। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पे ही मैं बोलूंगा, दोनों मिला करके ही बोलूंगा, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच हो सके। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलने की, हालांकि मेरा मीडियम ऑफ जर्नलिज्म हमेशा इंग्लिश रहा है, पर हिंदी मेरी मातृभाषा है तो मुझे परेशानी नहीं है उसमें। तो पहली चीज मैं तो यही कहना चाह रहा था कि मैं बताऊं क्या, योगा के स्टूडेंट्स को मैं क्या बताऊं क्लीनलीनेस के बारे में। सवाल ये है कि जब इन्होंने कहा कि 15 साल से 60 साल के लोग भी हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, तो मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे स्कोप है जो मैं बोल सकता हूँ कुछ, क्योंकि योगा में तो आपको खुद मालूम है 5 नियम तो ऐसे हैं जिसमें शौच भी इंक्लूडेड है। जो ये जो शक्ति की जो बात हम करते हैं ये तो शौच से शुरू होती है हमारे योगा में, और जो है क्लीन ड्राइविंग जो है, हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात होती है वो योगा से अच्छा और कौन इसको समझता है। हमारी जो माइंड की प्योरिटी की बात होती है, जो स्वच्छता की जो हम बात कर रहे हैं, ये योगा से अच्छा और कौन समझता है। तो जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे ये एक बात बहुत रहस्यमय लगती है। रहस्यमय क्या बोलूंगा, मुझे बहुत चिंतित करती है कि जब हमारी इतनी अच्छी विरासत है तो हम ये गंदगी की तरफ क्यों अग्रसर हो गए, इतना गंदा हम क्यों होने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको अपने पहले ही भाषण मुझे आज भी याद है, 15 अगस्त 2014 में लाल किला से जब उन्होंने देश को संबोधित किया था, तब उस समय उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की बात छेड़ी थी। ये बहुत चिंता का विषय है कि हम कहाँ गुमराह हो गए, क्यों ऐसा हम हो गए कि हमारे जहां जाए वहीं गंदगी का ढेर अंबार दिखता था। कहीं जाएंगे हम, कहीं पे भी हमारे खुद के कल्चर में ऐसा कि हम जहां जाएं कचरा वहीं पे फेंक दें, चाहे सड़क पे फेंक दें, चाहे कहीं पे भी डाल दें, घर के बाहर डाल दें। मैंने तो कई जगह देखा कि झाड़ू लगा रहे, घर को साफ किया और बाहर जाकर के कचरे के ढेर डाल दिया, जैसे कि अब हमने आग बंद कर लिया। तो मैं योगा पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। योगा में आज जो हम आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, मेडिटेशन की बातें करते हैं, ये सारी क्रियाएं स्वच्छता से ही संबंधित है। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई, जैसा मैंने कहा, करती हैं, हमारे दिमाग को जो है वो स्थिरता लाती हैं। तो स्वच्छता का तो एक तो ये तो मूल मंत्र है, ये हमें जो है एनर्जी देती है। तो कहाँ पिछड़ गए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इस पे। मैं, जैसा कि तैयब सर ने बताया, मैं बहुत जगह गेस्ट लेक्चर पे जाता हूँ। एक कॉलेज में मैं गया था, अच्छा कॉलेज था, बड़े बड़े पैसे वाले परिवार के बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, प्राइवेट कॉलेज था, फीस बहुत हाई थी, और मैं टीचर की जगह पे खड़ा था। तो वहां से मुझे सारे बच्चे दिख रहे थे। बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि टीचर जहाँ खड़ा है वहां से वो उसको देख रहा है कि नहीं, मगर दिखते सब हैं। मैंने देखा एक बच्चा वहां पीछे के बेंच में बिल्कुल दुबक करके च्युइंगम चबा रहा था, मेरी नजर उस पर पड़ गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा
कि उसने च्युइंगम एक कागज में निकाला, लपेटा और फेंक दिया जमीन पे ऐसे ही। मैंने उसे तुरंत खड़ा किया कि व्हाट हैव यू डन, व्हाई हैव यू डन दिस थिंग। वो अपोलोजेटिक नहीं हुआ। उस बच्चे ने मुझे कहा कि व्हाई आर यू पिन पॉइंटिंग एट मी सर, दिस इज आवर कल्चर, you go out and you see everyone is throwing everything everywhere, so why are you pinpointing at me? मैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल सन्नाटे में आया कि मैंने कहा यार ये तो जो बात कह रहा है, क्या वास्तव में हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम जो है कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंके? ये बच्चा ऐसी बात कैसे कह सकता है? तो मैंने उससे ये एक ही सवाल पूछा कि बेटा तुम्हारे धर्म को के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगा कि तुम या सिख हो, मुसलमान हो, चाहे वो तुम क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, पर एक बात बताओ, भगवान को मानते हो? उसने कहा हाँ मानता हूँ। तो मैंने कहा कि जब तुम भगवान को मानते हो और जब तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजा कहीं पे भी जाते हो तो गंदे गंदे चले जाते हो क्या? नहीं सर, नहा के जाता हूँ। तो बोले, मैंने कहा यही कहा कि देखो ये हमारा कल्चर है कि हम स्वच्छ होकर के जाते हैं, ना कि हम गंदा जाते हैं। तो अगर तुम कल्चर की बात करते हो तो दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट यू हैव इनकलकेटेड। ये इस तरह की धारणा मत रखो। ये हमारा कल्चर इतना गिरा हुआ नहीं है, ये हम लोग हैं जो इतना गिर गए हैं आज, जो इस तरह से गंदगी कर रहे हैं। ये हमारे कल्चर में नहीं है। आप मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा, कल्चर की बात से भी थोड़ा अलग है ये। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मेट्रो ट्रेन में हम सफर करते हैं, वहां तो हमें गंदगी नहीं दिखती। वहां तो आस्तिक भी जाते हैं, नास्तिक भी जाते हैं। कोई मंदिर और गिरजा में नहाने के सवाल नहीं है, मगर वहां गंदगी क्यों नहीं होती है? ये भी एक प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तीसरा, एक और मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, मेरी बेटी का है। हम लोग विदेश में कुछ साल रहे थे, वो बहुत छोटी थी। जब वापस आए तो उसने वो जिद पकड़ ली कि नहीं वापस चलो। मैंने कहा क्यों बेटा, ये अपना देश है, इतना अच्छा है, जहाँ हम रहते हैं ये भी अच्छी कॉलोनी है, सारी चीजें साफ सफाई वैसे ही लगता है। बोलता नहीं डैडी, मुझे एक चीज नहीं पसंद आती है। तो मैंने कहा क्या नहीं पसंद आती है? यहाँ पे लोग सड़क पे चलते चलते थूकते हैं। आई कैन नॉट स्टैंड दैट कि वो कोई थूक रहा है ऐसे और मैं उसके ऊपर पीछे से जा रही हूँ। छोटी सी 4 साल की बच्ची ये बात बोल रही थी। ये हमारे में कहीं ना कहीं ये कि ऐसे हमारे व्यवहार में इस तरह से गंदगी कैसे बैठ गई, क्यों बैठ गई, क्या वजह है? और थूकने से क्या दुष्परिणाम होते हैं? मेडिकल, कोई भी आप मेडिकल की तो बात छोड़ दी, हर आदमी जानता है कि थूकने से कितने कितने तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं, सेहत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। पर ये हमारे कल्चर में आ गया। तो अब जो है, हम जो है, पॉइंट ये है कि क्लीनलीनेस के बारे में तो हम सभी बात करते हैं, सभी स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। वी ऑल टॉक अबाउट क्लीनलीनेस, वी टॉक अबाउट अ हेल्दी लाइफ, वी एसोसिएट क्लीनलीनेस विथ हेल्दी लाइफ, मगर हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हम क्लीनलीनेस को इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ता है हमें, और उसके बाद भी एक जागरूकता हम इंतजार करते हैं। लोगों में लोगों में एक जागरूकता आएगी, पीपल विल गेट एनलाइटेंड अबाउट इट, दे विल गेट अवेकेंड। पर ये हमारे अंदर से क्यों नहीं आता है? तो एक्चुअली में मैं जहां तक सोचता हूँ कि इसका उत्तर हमें खुद ही मालूम है कि कहाँ पे हम गलत होते हैं। आप मेट्रो में जैसे मैंने कहा, मेट्रो में आप गंदगी नहीं करते हैं क्योंकि वहां का माहौल बहुत साफ माहौल है। मेट्रो में ये आप हम प्रूव करता है ये मेट्रो जो है कि अगर हमें माहौल अच्छा मिले तो हम गंदगी नहीं करते। आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले हमें वो माहौल नहीं मिलता। हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें कहीं कूड़े का डिब्बा नहीं दिखाई देता था कि कहाँ फेंके, तो फेंक देते थे। मगर वही मैं विदेश में देखता था कि वो वहाँ कूड़े का डिब्बा नहीं भी मिला है तो भी हम अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, जहाँ पे मिलेगा वहां जाकर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ, वहाँ गंदगी हम नहीं करना चाहते थे कि यहाँ पे करेंगे तो गंदा लगेगा। इंतजार करते थे कहीं आगे का कूड़े का डिब्बा मिलेगा तो हम वहां फेंकेंगे। यहाँ पे तो हमने फेंक दिया कि कूड़ा का डिब्बा ही नहीं, चलो फेंक दो यहाँ पे। दूसरा, हम क्या देखते हैं कि अरे अरे ये सारे लोग, जैसे उस बच्चे ने कहा कि अरे हमारे बाहर तो सभी करे तो आप मुझे क्यों पिन पॉइंट कर रहे हो? तो इस ये है कि हम बड़ों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो गंदगी कर रहे हैं तो हमको लगता है कि भाई हमने क्या गलत किया है। एक ये है। और मैंने
और भी ऐसा क्या है कि जगह, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे एक मेरे घर के पास में एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, बायोटॉक्सिक वेस्ट, कितना खतरनाक होता है सभी जानते हैं। अब वो हॉस्पिटल के पास जगह नहीं थी। मैंने कहा वो कूड़े का डिब्बा का हम इंतजार करते हैं ना कि कहाँ मिलेगा वहां फेंकेंगे, नहीं था तो हम ऐसे ही फेंक देते थे। यहाँ इसके हॉस्पिटल के बाहर कहीं इनको डिस्पोज करने का ये कहीं इनके पास जगह नहीं थी, तो ये हमारी सोसाइटी के आसपास जो जो रेसिडेंशियल है वहां पे जाकर के उन्होंने एक डिब्बा खड़ा किया, वहां पे सारा डंप करना शुरू किया, जो सड़क वगैरह सारा गंदा। हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, जहाँ पे लोग अपना इलाज कराने आते हैं, जो सेहत के बारे में बात करते हैं, हेल्दी सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल उसका एक अभिन्न अंग होता है। जब भी कोई बीमारी हो तो, और अगर हॉस्पिटल ऐसा बर्ताव करता है तो आप समझ लीजिए कि हम किस लेवल पे हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद उनको समझ में आया, बहुत सरकार को लिखना पड़ा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना पड़ा, भाई इनको कोई जगह एलोकेट कराओ। तब जब वो हुआ, तब उसके बाद यहाँ से हम लोगों को निजात मिली। तो ये एक हमारा एक ये सिस्टम भी कुछ इस तरह का बन गया। माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया है? इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट एक्चुअली। ये माइंडसेट ऐसा क्यों बन रहा है हमारा? हम अपनी आसपास की गंदगी को अनदेखा करना छोड़ें, ये बहुत जरूरत है। हम अनदेखा करते हैं। इसका वजह, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने एक माइंडसेट की बात की, हमारा मेंटालिटी ऐसा हो गया है। हम दूसरों को देखते हैं गंदगी कर रहे हैं तो हमको भी लगता है, हमने आज हम देखते हैं कि अरे दूसरे मास्क नहीं पहन रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हम भी हटा देते हैं। ये एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें ये डर नहीं है कि अरे कोविड से इतने लोग मर चुके हैं, मगर फिर भी जो है हम देखते हैं अरे 5 लोगों ने नहीं लगाया मास्क, हम मास्क हटा दिए। जान की भी फिक्र नहीं है। ये तो हमारा तो ऐसा माइंडसेट हो चुका है। हमने दूसरी जो है, दूसरी बात इसकी ये हो सकती है कि माइंडसेट के अलावा की व्यवस्था की कमी थी। डिब्बे नहीं दिखते थे कचरे के, तो हम कहीं पे भी फेंक देते थे। तीसरा एक और ये था जब कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारे यहाँ, टालो बातों को। अरे कौन करता है यार, छोड़ो ये काम चल ही रहा है, चलने दो इसको, यहाँ फेंक दो। आएगा कूड़ा वाला, कोई आएगा उठा के ले जाएगा, सवेरे स्वीपर आएगा झाड़ू मार देगा। तो यही वजह है, मुझको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाल किला से स्वच्छता आंदोलन के बारे में बात करने की जरूरत पड़ी। और मुझे आज भी याद है जो उन्होंने कही, ये बात कही स्वच्छता के बारे में, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा कि प्रधानमंत्री वहां से क्या बोल रहा है, स्वच्छता के बारे, सफाई के बारे में बोल रहा है, देश की पॉलिसी के बारे में बोले, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बोले, और ये स्वच्छता के बारे में बोल रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या है? बहुत जगह मैंने बहुत लेख इस तरह के भी पढ़े, पर ये एक बेसिक पॉइंट था। और उसका आज मैं देख रहा हूँ जागरूकता है। आज मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे हैं वो हमें ज्यादा गाइड कर रहे हैं। कोई बड़ा फेंकता है तो बच्चे टोक देते हैं कि क्यों फेंक रहे हो यहाँ पे। ये हम लोग सबने महसूस किया है, आप लोग सबने महसूस किया होगा, मुझे पूरा बिल्कुल ये इस बात में कोई मुझे शक की गुंजाइश नहीं है कि ये एक अवेयरनेस आ रही है, बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा असर हो रहा है। इस स्वच्छता अभियान का एक जो महत्व है, क्लीनलीनेस का एक महत्व, जागरूकता आ रही है। मगर क्या क्लीनलीनेस का हमारा दायरा इतना ही बड़ा है कि कूड़े का डिब्बा तक ही सीमित है, या सिर्फ हमारी सेहत तक ही सीमित है? इसकी परिभाषा और भी बड़ी है, बहुत बड़ी परिभाषा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे हमने योगा की बात की, योगा में तो क्लीनलीनेस ही एकदम बिल्कुल सिनोनिमस है। क्लीनलीनेस की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है वो योगा जो है, जो हम इम्बाइब करते हैं, तो क्लीनलीनेस तो हमारे अंदर आना चाहिए वो चीज। तो ये अभी हाल में इसी बारे में मैं ये बोलूंगा कि इसका दायरा इतना बड़ा है कि आज हमारी क्लीनलीनेस की वजह से ही हमारा अस्तित्व खतरे में है। जो हम गंदगी, गंदगी का क्या, गंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम जो है कूड़ा फेंक रहे हैं, करकट फेंक रहे हैं, हम जो है यहाँ पे कुछ नहा धो नहीं रहे हैं, कहीं पे भी हम कुछ कर रहे हैं। गंदगी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। अगर हम आस पास आज देखें तो ये गंदगी हमारे हवा को जो है विषैला बना रही है, हमारे पानी को जो है वो पीने लायक नहीं बना रही है। आज जो हमारी मिट्टी है, हम क्यों आज जा रहे हैं, चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले? ऐसा नहीं, क्लीननेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी है तभी हम ऑर्गेनिक फूड डिमांड करते हैं। आज हम स्मोक टावर दिल्ली में लगे हैं, क्यों डिमांड करते हैं, क्यों उसके बारे में इतना बोलते स्मोक टावर लगाया? क्योंकि हमें जानकारी है कि अगर वैशाली हवा है तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। ये जो है विषैली हवा कहाँ से आती है? गंदगी से आती है।
या अगर हमें मालूम है कि हम बॉटल्ड वाटर क्यों बिस्लरी का जाकर खरीदेंगे, हम नल का पानी नहीं पीते हैं आजकल, जाकर बॉटल्ड बिस्लरी और अलग अलग कंपनी की खरीद के पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल है कि हम गंदा पिएंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे अपने बदन को, हमें बीमारियां लग जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे को इसके इम्पोर्टेंस की जानकारी नहीं, सबको जानकारी है। ठीक है। तो अभी हाल में एक यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसने अभी इसी महीने मेरे ख्याल से 7 या 8 अक्टूबर को एक रिजोल्यूशन पास किया। वो रिजोल्यूशन क्या था? राइट टू इट वाज कॉल्ड राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। पर ऐसे रिजोल्यूशन जो सबके लिए लाभकारी होंगे, इसको पास करने में भी इतने बरस लगे। और बहुत आश्चर्य ये होता है कि इसमें जियो पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, ये सारे कंसिडरेशन इतना महत्व रखते हैं कि इनको पास होने में, मैं एक बात बताता हूं कि इंडिया ने एब्सटेन किया इसमें वोटिंग करने पे। ये नहीं कि इंडिया नहीं चाहता था हो, मगर इतनी तरह की उसमें चीजें होती हैं, इतनी तरह के उसमें पॉइंट्स होते हैं, जो क्या बोला जाए, फाइन पॉइंट्स होते हैं, फाइनर पॉइंट्स, कि उसमें बहुत सारी चीजों को चाहते हैं कि इसको भी दूर किया जाए, तब करेंगे। इंडिया ने एब्सटेन किया, जो चाइना ने एब्सटेन किया, मगर देश के ज्यादातर, दुनिया के ज्यादातर लोगों ने इसको पास करवाया। इस बिल को राइट होना है, हमारा राइट है कि हमें क्लीनलीनेस, जो क्लीन मिले, वातावरण मिले, हेल्दी वातावरण मिले, और हमें जो है एक सस्टेनेबल वातावरण मिले। आज क्या हो रहा है, इन गंदगी की वजह से, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? गंदगी का नतीजा है। टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या है? टॉक्सिक गैसेस ऊपर जाती हैं। गंदगी की परिभाषा सिर्फ हमारे कचरे के डिब्बे तक नहीं है, हमारे कूड़े के डिब्बे तक ये परिभाषा सीमित नहीं है। हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फैला रहे हैं, हम हवा में जो है, सॉरी, वो कर रहे हैं। तो ये जो है, इसकी वजह, इसका परिणाम क्या होने वाला है? गंदगी आज का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, ये आप समझिए। आज ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या होने वाला है? ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, हवा प्रदूषित है, वो तो अलग बात है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, पूरा क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले, शायद पिछले कोविड से थोड़ा पहले की बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा था कर्नाटक में, हुबली के क्षेत्र में, वहां मैं ट्रैवल कर रहा था। बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी। मेरे साथ एक बहुत अच्छे सज्जन, जानकार, कृषि के जानकार सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप जानते हो, ये बारिश 2 महीने लेट हो रही है, किसानों ने खुदकुशी अभी कर ली होगी। मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने खेत जो था, उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने अपने खेत को जोता था, बारिश आज हो रही है। तो ये जो क्रॉप पैटर्न जो है, इसको चेंज करने की, अडेप्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेबिलिटी की बात करें, सबके पीछे क्या है? मूल वजह क्या है? गंदगी है। दिल्ली में जो हम जो इतना कर रहे थे, पराली जो है वो क्या है? गंदगी है। पराली जलाते हैं, वो पॉल्यूशन करते हैं, क्या है? वेस्ट है ना, वेस्ट मटेरियल है खेत से। उसका टेक्निक नहीं है वहां पे, उनको इकोनॉमिकली वो जो है वो सस्टेनेबल नहीं पड़ता है, तो वो जो है जला देते हैं। तो सिर्फ गंदगी मतलब कि हमने च्युइंगम खाया, फेंक दिया, वो गंदगी नहीं है। गंदगी तो का तो बहुत बड़ा दायरा है। When we are talking of cleanliness, it has a huge ambit. तो इसमें जो है हमारा राइट तो होना चाहिए। एब्सटेन किया मतलब कि इंडिया अगेंस्ट नहीं है इसके राइट के। उसने एब्सटेन किया कुछ और टेक्निकल रीजंस की वजह से, कि इसमें ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों हम सिर्फ इंडिया के ऊपर बर्डन पड़े? सबको लेना चाहिए। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने बहुत गंदगी फैलाई है, उनको भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आकर के फिर ये एक तरफ ध्यान आकर्षित हमारा करती है कि ये गंदगी का जो है, इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए हैं, सी वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, सी वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो गया है।
क्या होगा कुछ सालों के बाद? 2050 में क्या होगा? 2030 के बाद क्या होगा? जब 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितने सारे देश डूब जाएंगे, जो छोटे छोटे जो टापू हैं, वो इस तरह के द्वीप हैं, डूब जाएंगे। गंदगी का तो ये असर है आज कि अस्तित्व खतरे में है हमारा अस्तित्व खतरे में हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने आज की तारीख में। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस इसको नहीं समझता है। अब सवाल ये है, तो जब यूनाइटेड नेशंस इसमें किस तरह से काम कर रहा है, अगर हम देखें तो हमारे जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, शायद जो बच्चे हैं 15 साल 20 साल के, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में नहीं मालूम हो जाता। 2000 में पहले हम यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे, MDGs। 2015 तक उसको लागू करना था। कुछ हद तक वो हुए, कुछ हद तक नहीं हुए लागू। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया गया, पॉइंट्स लाए गए कि 2030 तक हमें इसको अचीव करना ही करना है अगर हमें अपने प्लैनेट को बचाना है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इसमें ज्यादातर तो गंदगी से ही जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से हैं जो गंदगी से जुड़े हुए हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये 2030 तक में हमें पूरा करना है, मगर अब तो ये हो रहा है, बीच में कोविड जो हुआ है उसके पहले से ही हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज इसको अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, 2030 तक पूरा नहीं होगा, इसमें अब संदेह हो रहा है कि ये कहाँ जाएगा, हमें कहाँ ले जाएगा ये। और इसमें गंदगी की जब बात करते हैं तो देखिए, इसमें स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। आप कोई भी सस्टेनेबल गोल उठा करके देख लीजिए, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन मतलब क्या है, गंदी हवा से निजात। क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब गंदे पानी से निजात। हम सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, गंदगी से दूर हटने की बात कर रहे हैं। चाहे वो फिर क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी स्वच्छ होना चाहिए हमारा। आज फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसको मत करो, गंदगी फैलती है, पॉल्यूशन फैलता है, इसको मत करो। क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करते हैं लोग, हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रल एनर्जी की। उसके बाद फिर एक गोल है सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेल बीइंग, उसकी बात जब करते हैं, ये भी एक गोल है, गोल नंबर 6 है शायद। तो हेल्थ एंड वेल बीइंग क्या है, कि अगर आप स्वच्छ ही नहीं रहेंगे तो आप हेल्दी कैसे रहेंगे। योगा में तो आप जानते ही हैं इसमें। तो जहाँ पे हैजार्डस केमिकल्स होंगे, पॉल्यूशन होगी, जहाँ वहां तो बीमारियां होंगी ही होंगी। वो गंदगी का ही जड़ है ये सारा। तो आज सारी दुनिया सजग हो गई है इन गंदगियों को दूर करने के लिए, मगर इसमें इतने सारे जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो भी जो है उसमें भी बहुत सारी उसमें सीमाएं हैं उसकी। और ये इससे जितनी जल्दी हम उबर सके उतना अच्छा होगा। और इसमें आज का ही मैं उदाहरण लूँ ना, मैं कोविड के बारे में इतना बोला, ये कोविड क्या है, आज इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने कुछ है ही, हो ही नहीं सकता है। कोविड के समय हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में लोग बात करते हैं। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, जब हम हेल्दी होंगे। हेल्दी तभी होंगे जब हम स्वच्छता से रहेंगे, स्वच्छ मतलब स्वच्छ आहार लेंगे, स्वच्छ जल लेंगे, स्वच्छ हवा लेंगे, तभी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी हम कोविड से अलग होते हैं, बचेंगे। इससे बड़ा उदाहरण हम क्या करें, तो इतने कितने मिलियन मर गए, इसके आधार पे क्या था, मूलभूत आधार क्या था, वो तो हमारी गंदगी थी। आज क्यों हम इतना इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, आओ साबुन से हाथ धो, मास्क पहनो ताकि आप इनहेल नहीं करो वायरस को। आज ये नौबत क्यों आ गई है, इतना हमने प्रदूषित कर दिया अपने वातावरण को गंदगी फैला फैला करके, कि आज ये नौबत आ गई है। पर ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें रियलाइजेशन नहीं था। अगर हम अपने पुराने जमाने में जाएं, आज से कुछ साल ही पहले जाएं, 50-60 साल पहले, 100 साल पहले,
आज भी है। आज भी मैं देखता हूँ गुजरात में आप जाएं, आप बंगाल में जाएं, आप महाराष्ट्र में जाएं, घर के अंदर आपको चप्पल पहन करके घुसने की अनुमति नहीं है। आप घर के बाहर चप्पल उतारें फिर अंदर आए। हमारे कल्चर में ये है, जो उस बच्चे ने कल्चर की बात की, हमारा कल्चर ये है, हम चप्पल बाहर करते हैं। आप जाएंगे बाहर मटका रहता था, पानी रहता था कि आप पहले हाथ पैर धोएं फिर अंदर आए। किचन के अंदर जो था, जब जूते पहन के जाने की अनुमति नहीं होती थी। महिलाएं जाती थी वहां पे, बनाती थी, खाना बनाती थी, और कोई भी चीज अंदर और दूसरी चीजें नहीं जा सकती थी। स्वच्छता का ये एक हमारा अपना एक मापदंड था जो हम भूलते चले गए, हमारा एक कल्चर था जो हम भूलते चले गए आज। अब इसको आप चाहे वेस्टर्न कल्चर बोलिए चाहे कुछ बोलिए, वो मैं नहीं कहता हूँ कि क्या है। हर जगह का अपना एक की अपनी एक होती है, सभ्यता होती है, हर तरह का एक जो यहाँ सही है हो सकता है कि वहाँ गलत हो, जो वहाँ गलत है वो हो सकता है यहाँ सही हो। उस मामले, उस डिबेट पे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पर मैं यही कहूंगा कि ये जो स्वच्छता जो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो खतरा पूरे जो मानव जाति पे है और पूरे वर्ल्ड पे है, मानव जाति की बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड पे है, हमारी वजह से दूसरे भी परेशान है, चाहे वो जानवर। अरे जानवरों की बात करें, आप देखिए, मैं तो देखता हूँ, जो मेरे पास कुछ एक पालतू बिल्ली है, मैंने आज तक नहीं देखा कि इधर उधर कहीं वो लिटर करे, और वो खुद सेल्फ क्लीनिंग करती है। बचपन से उसको लिया है मैंने। उस बेचारी की जो है माँ मर गई थी, कोई नहीं था, तो उठा करके मेरी बेटी ले आई थी घर पे। किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया उसे, और वो जो है खुद सेल्फ क्लीनिंग करती है। कहीं थोड़ा गंदा लगा, चाट चाट के साफ करती है। मैंने डॉक्टर से पूछा, चाटती है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं? उसने कहा कि नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उनके अंदर जो है जर्म किलिंग कैपेसिटी उनके सलाइवा में इतनी अच्छी है कि उनको कुछ नहीं हो सकता है। तो जर्म किलिंग कैपेसिटी हमारे सलाइवा में भी है। ये मुझे किसी ने बताया था, आप ज्यादा जानते होंगे, तो किसी ने बताया, मैंने ये तो मुझे लगा कि, मगर एक बिल्ली, आप एक कुत्ते को लीजिए, जब बैठता है तो पहले अपने पूंछ से जगह को साफ करता है फिर बैठता है। तो हम क्या, हम भी वही, हम तो जानवर से ऊपर अपने आप को समझते हैं। उनको तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, हमें अभियान क्यों चलाना पड़ता है इसके लिए, स्वच्छ रखने के लिए? उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, बचपन से उसकी कोई माँ उसे नहीं थी समझाने वाली मेरी बिल्ली को, मगर वो खुद करती है। टॉयलेट के लिए एक ही जगह जाती है, वहीं जाके करती है, और ऊपर से उसमें मिट्टी डाल करके आती है। किसी ने उसे नहीं सिखाया। ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल है। सबको, एक जानवर को ये समझ है तो हमें ये क्यों समझ नहीं है? तो ये समय है कि हमें इस पे बहुत, और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इशू को उठाया है इस मंच पे। और आपसे अच्छे टीचर तो कोई हो नहीं सकते, आप तो योगा के टीचर हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आप इसको, इस मुहिम को बहुत आगे ले जाएंगे और हम लोगों को भी एडुकेट करेंगे। मैं तो जितना जानता था मैंने शेयर किया है। एंड आधा घंटा मुझे बोलने को कहा गया था, लगता है मैंने आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है। तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सफाई के महत्व को इतने सिंपल वर्ड्स में हमें बताया। और अब मैं ये विषय विचार के लिए प्रस्तुत है। सर, मेरा ही एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये साफ सफाई हमारे पर्यटन को किस प्रकार प्रभावित करती है? टूरिज्म हमारा किस प्रकार इफेक्ट होता है बिल्कुल, क्लीनलीनेस? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। इस पॉइंट पे भी मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर समय अभाव की वजह से मैं नहीं बोल पाया। आज की तारीख में आप देखें, हमारे पास हमारी बीचेस जो हैं उनको वर्ल्ड रेटिंग मिल रही है। तो एक आकर्षण ऐसे ही बढ़ जाएगा। आज हमारे पास कंट्री, हमारे देश में कम से कम 7-8 ऐसी बीचेस हैं जिनको वर्ल्ड रेटिंग मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है स्वच्छता। तो लोगों का आकर्षण हो गई। हम क्यों गोवा जाना चाहते हैं? गोवा के बीच में सफाई है वहां पे। हम क्यों नहीं एक दूसरे बीच में जाते हैं? हम भावनगर के पास एक बीच है, मैं गया था, दोबारा मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। गंदगी थी वहां पे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सफाई हो गई होगी, मैं 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लोग जो हैं बाहर क्यों घूमने जाना चाहते हैं? क्यों वो पर्यटन पे जाना चाहते हैं? वो अच्छी जगहों पे जाना चाहते हैं। बुरी जगह पे जाने के लिए कोई पर्यटन नहीं करता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं जो हूँ जाऊंगा वहां पे, कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ गंदगी है वहां पे 5 दिन रह करके आऊंगा।
कोई है आप में से कोई, अगर कोई है तो मुझे बता दे, तो मैं उनसे भी ये जानना चाहूंगा कि भाई वो वहां जाकर के क्या किस तरह का सेहत लाभ लेना चाहता है, क्यों आना वहां जाकर रहना चाहता है, कोई गंदे होटल में क्यों नहीं रहना चाहता है, जाकर के 10 बार कंप्लेन क्यों करता है कोई कि भाई तुम्हारे यहाँ ये बिस्तर जो है, ये पलंग का बेड जो है गंदा है। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं यार अपने घर को गंदे रखते हो, होटल में जाकर के तुम जो बोलते ऐसा ऐसा लाट साहब भी करते हो जैसे लग रहा है कि कभी गंदगी नहीं देखी है तुमने। तो एक नेचुरल ये है कि लोग सफाई चाहते हैं, जाना चाहते हैं, पर्यटन अच्छी जगहों पे घूमना चाहते हैं, गंदी जगहों पे जाना कोई नहीं चाहता है। हम क्यों पैसा खर्च करके गंदी जगह पे जाएं? कोई भी अगर ऐसा है आप में से तो मुझे बता दीजिए, कोई गंदी जगह के लिए सेलेक्ट करके गया है कि मैं यहाँ पैसे खर्च करूंगा, यहाँ पे रहूंगा 20 दिन और बीमार होकर के आऊंगा। धन्यवाद सर। एक जिज्ञासा और है सर, ये विदेश में इतना साफ सफाई या स्वच्छता पे इतना ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ की सरकार ज्यादा सशक्त है या नागरिक ज्यादा जागरूक है? अलग अलग देशों में अलग अलग कायदे हैं। मैं करीब 20-25 देशों में तो मैं भी गया हूँ। तो मैं अफ्रीका भी गया हूँ, यूरोप भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, नॉर्थ साउथ अमेरिका भी गया हूँ, और एशिया में भी काफी गया हूँ। तो अलग अलग देशों में, अब जैसे सिंगापुर को फाइन सिटी कहा जाता है, आप कहीं कूड़ा फेंके तुरंत आपके पास आ जाएगा, फाइन कर लेगा। तो एक तरह से सरकार का भी रोल है अब सिंगापुर में स्वच्छ रखने में। इट इज द क्लीनेस्ट कंट्री बोलते हैं उसको, सबसे क्लीन है। कहीं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, एक प्लास्टिक भी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। सरकार यहाँ पे भी सरकार ने जो अभियान चलाया है भारत में, सरकार ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज उठाई है। आप आज देखें, आज जो हम गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं, आइसक्रीम वालों के पास जाते हैं, सब अपने पास एक कूड़े की का डब्बा रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? तो उन पे फाइन हो जाएगा, उन पे पेनल्टी लग जाएगी। तो ये एक जागरूकता लाने में सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकार ये काम करना ही पड़ेगा। और ये जागरूकता में लोगों को भी खुद एक समझ तभी आती है जब वो देखते हैं अपने आसपास के स्वच्छ वातावरण को देखकर। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं विदेश जाऊंगा, कूड़े का डब्बा नहीं भी दिख रहा है तो भी मैं पॉकेट में लेके कूड़ा ढूंढूंगा, बाद में लेके घूमूंगा और जहां पे डिब्बा दिखेगा वहां फेंकूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माहौल वैसा हो जाता है। तो एक स्वतः आपके अंदर में एक फीलिंग आती कि अरे मेरे वजह से ये गंदा हो जाएगा। मेट्रो का मैंने एग्जाम्पल दिया था, स्वतः एक फीलिंग आती कि मैं यहाँ कूड़ा नहीं फेंकूंगा। वही क्राउड है जो बाहर जाकर भी कूड़ा फेंकती है, मेट्रो के अंदर आकर के और स्टेशन के अंदर आकर गंदगी क्यों नहीं फैलाती है? तो एक माहौल है। तो दोनों की जिम्मेवारी है। सरकार की एक जिम्मेवारी है कि उस तरह का माहौल खड़ा करे जहाँ पे कूड़े का डब्बा मिले, या इस तरह के रूल बनाए कि हाँ, आप अगर बेच रहे हो कुछ गंदगी फैलाने का जिससे कुछ होता है कि गुंजाइश है, तो आप अपने पास कूड़े का डिब्बा रखो, जो आइसक्रीम वाला रखता है, गोलगप्पे वाला रखता है। तो इसको अमल भी ठीक से करे। तो और जगह जगह पे कूड़ों का डब्बा होना चाहिए, जो आज हो रहा है। पहले तो ये होता था कि रखते थे और चोरी हो जाती थी उसकी। पहले तो ये भी हाल था, मैंने ये भी देखा है कि वो चोरी हो जाता था, डिब्बा रख दिया, चोरी हो गया वो डिब्बा। तो फिर तरीका निकाला कि उसको जंजीर से बांध के रखने लगे। तरीका तो हर चीज का निकलता है। तो इसमें हर एक का रोल है। हाँ, मगर एडुकेट करने के लिए तो इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ती है। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्लासरूम में बताएंगे, हम लोग जैसे जर्नलिस्ट हैं जो लिखेंगे इसके बारे में, सरकार का अपना दायित्व है इसके बारे में नियम बनाए, तभी एक जागरूकता का एक माहौल बनता है, लोग भी उसमें फिर जुड़ते हैं। सर, एक बस आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो क्लीन इंडिया ड्राइव जो चलाई जा रही है, ये किस प्रकार भारत को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका अदा कर रही है? आज की तारीख में मैंने ये बहुत गौर से देखा है कि लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है। इंदौर है या सूरत है या फिर आज उज्जैन बन गया है या फिर कोई और बन गया है। तो ये जो है आजकल ये चर्चा होती है, लोगों के दिमाग में ये बात है। तो ये जो स्वच्छता की जो बात, जो आपने क्वेश्चन जो पूछा, एक बार प्रश्न को एक बार फिर से दोहराएंगे जरा। जी सर, प्रश्न मेरा ये है कि ये क्लीन इंडिया ड्राइव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा चलाई गई है, ये स्वच्छ भारत अभियान, किस प्रकार ये भारत को स्वच्छ रखने में, शौचालयों में किस प्रकार अपनी ये भूमिका अदा कर रहा है? मैं एक बात बोलूं, मेरे कुछ लोग दोस्त हैं या रिलेटिव हैं जो विदेश में रहते हैं, आपके भी होंगे। जब वो पहले आते थे
नाक भौं सिकोड़ के जाते थे, यार कहाँ रह रहे हो, कैसा रह रहे हो, उनका माहौल था। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सफाई से रहते हैं। आज जो सफाई का दायरा सिर्फ वो खाली आसपास की सफाई नहीं है, पॉल्यूशन जो है, ग्लोबल ये जो वार्मिंग हो रही है, सब में सबका वो योगदान है, गंदगी में सबका योगदान है। मगर हाँ, आसपास के वातावरण की इमीडिएट जो हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दैट, ऑब्वियसली वो आएंगे नाक भाव सिकोड़ते थे। मगर पिछले 5-7 सालों में मैंने देखा है जो लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि काफी चेंजेस आए हैं इसमें। मैं अपना खुद का नहीं, क्योंकि हम जिस माहौल में, वहां तो पता नहीं चलता है कि हम दुबले हो गए या मोटे हो गए। तो बाहर वाले दूर से जो कहता है, अरे तुम तो मोटे दिख रहे हो, दुबले दिख रहे हो। तो वो जो बाहर वाला आकर जब वो कहता है ना कि हाँ, एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारे यहाँ सफाई ज्यादा लग रही है। इस बार अभी मैंने देखा कि बारिश के वजह में कोई एक बाहर से आया तो बोला कि इस बार गंदगी दिख रही है, पिछले बार मैं आई थी तो ज्यादा सफाई दिख रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बारिश है, बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह जम गया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये दिख रही है, मगर ऐसे है सफाई। हम डिफेंड तो करेंगे, मगर अब यहाँ पे एक रास्ता ये है कि अब बारिश के समय जो गंदगी, इससे बचने का भी उपाय निकालना चाहिए। हम कैसे करें? हम नालियों को हम साफ कर देते हैं, फिर वो कूड़े का वो कब उसकी जो नाली के अगल बगल में जो है वो कूड़े सारे जमा हो जाते हैं, फिर उनको फेंकने के लिए वहां पे एक नियमित एक व्यवस्था हो जाए ना, ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि हम सफाई में नहीं रहना चाहते हैं, हम सफाई नहीं करना चाहते हैं, एक व्यवस्था की जरूरत है। एक व्यवस्था काफी हद तक एकदम सुधार हुआ है, बहुत हुआ है। बाहर के लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दिया, तो उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो मगर अभी भी इसमें काफी गुंजाइश है, जैसे हम, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर के इसको करेंगे और भारत को एक अच्छा स्वच्छ देश बनाएंगे। ना सिर्फ हमारे शहर और ये गांव जो है वो स्वच्छ दिखे, बल्कि हमारा वातावरण, हमारा पानी, हमारी मिट्टी सब स्वच्छ दिखे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी स्वच्छ भारत अभियान की सीरीज में जहां हमने पौधारोपण किया और विभिन्न कार्यक्रम करवाए, तो उसी में इसी की एक श्रृंखला में हमने ये वेबिनार रखा था। तो इसी की आज समापन की मैं शांति पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ सबको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सर। इजाजत ले लूं? जी सर, थैंक यू सर।